वेलकम ऑल ऑफ यू इन सिंपल हेल्थी वेज। मैं डॉक्टर रूपाली उड़ाने आप सबका सिंपल हेल्थी वेज में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इंसुलिन हार्मोन जो पैंक्रियास से सिक्रेट होता है और जब उसका सिक्रेशन कम होता है या फिर उसमें फ्लक्चुएशन होता है तब ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है एंड देन पेशेंट सफ़र विद द डिसीज ऑफ डायबिटीज़। और ये जो हमने इंडोक्राइन ग्लैंड डिसऑर्डर की सीरीज शुरू की है उसमें फर्स्ट था डायबिटीज, that is due to insulin hormone secretion and function disturbance which is secreted from pancreatic gland. And in today's video we are going to discuss about thyroid gland. Thyroid gland, it is a butterfly shaped endocrine gland. Thyroid situated anteriorly and inferiorly, that is below the Adam's apple. It is a butterfly shaped gland. It is a right lobule and left lobule, and on the trachea it is connected by isthmus. And then below again the tracheal line is going on. So what are the main function of thyroid gland? The first important function is formation and secretion of thyroid hormone. Two major hormones secreted by thyroid gland, that is T3, T4. Here the number of iodine molecule changes. Here 3 and 4 represent number of iodine molecule present in the hormone. T3 and T4 secreted by thyroid stimulating hormone, that is from anterior pituitary, and TSH is secreted from thyrotropin releasing hormone, that is from hypothalamus, and this hormonal synthesis is regulated by negative feedback mechanism. It means if the level of thyroid hormone is high in the blood, then it will suppress TSH and TRH and it consequently inhibit thyroid hormone. Second main function is iodine homeostasis. Thyroid gland regulate biochemical and physiological activity of iodine. Iodine is the essential nutrient which plays important role in the synthesis of hormone T3 and T4. It also plays important major role in the metabolic process of the human body. And it is also important for the reproductive system of male and female genital tract. During pregnancy, iodine plays important role. It helps in fetal brain development. So daily intake of iodine from dietary source is very important to regulate essential functioning of the human body. The next important function is metabolism. High metabolism rate stimulate appetite and digestion, and it help in the breakdown of nutrient and absorption of essential nutrient in the blood. The next important function of thyroid gland is increased oxygen consumption that leads to increased breathing rate and heart rate. The next important function of thyroid gland is in thermal regulation. In winter, it produces excessive heat in the body, and so there is a feeling of warmth in the body. And then the main important function of the thyroid gland is in the reproductive system of male and female. It plays important role in female pregnancy, in fetal brain development. It plays important role in early growth and development of fetal organ. In male also it plays important role in spermatogenesis. Disturbed thyroid hormonal level in female lead to menstrual disturbance, menstrual irregularity, and frequent complaint of heavy bleeding. Sometimes, in some cases, thyroid hormone disturbance is the main reason behind the infertility. So these are all important function of thyroid gland in human body. ये T3, T4 and TSH हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से दो कंडीशन दिखाई देते हैं. One is hypothyroidism and another is hyperthyroidism. In hypothyroidism, there is often insufficient production of hormone. T3, T4 हार्मोन्स कम होते हैं. T3, T4 हार्मोन का लेवल लो होता है, उसकी वजह से लो मेटाबॉलिक रेट रहता है और उसकी वजह से लो रेस्पिरेटरी एंड लो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी भी दिखाई जाती है. हाइपोथायराइडिज्म में लक्षण कौन से दिखाई देते हैं? लो मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से एपेटाइट कम रहता है, फिर भी पेशेंट वेट गेन करता है, पेशेंट में मोटापन दिखाई देता है, हार्ट एक्टिविटी और हार्ट रेट भी लो रहता है, कॉन्स्टिपेशन दिखाई देता है, फिर फटीग, पेशेंट ऑफन फील थकान, पेशेंट ऑफन फील टायर्ड, और हाइपोथायराइडिज्म में पेशेंट में कोल्ड इंटॉलरेंस भी रहता है.
In case of female, there is a menstrual irregularity is seen and there is a heavy bleeding is also observed. तो हाइपोथायराइडिज्म के पीछे मेन कॉजेस क्या है? एक तो है आयोडीन डेफिशिएंसी, जिसमें आयोडीन की कमी होने की वजह से थायराइड में स्वेलिंग आता है और उसकी वजह से गॉइटर भी दिखाई देता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है हाशिमोटोस थायराइड। दिस इज अ ऑटो इम्यून डिसीज, इसमें इम्यूनिटी कम होती है। और बहुत सारे मेडिकेशन, जैसे पेशेंट इज ऑन एंटी थायराइड ड्रग, देन पेशेंट इज ऑन एमिडोरॉन ड्रग्स, पेशेंट इज ऑन कैंसर इम्यूनोथेरेपी ड्रग, ये सारे मेडिकेशन में भी हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन दिखाई देती है। देन इन केस ऑफ पोस्ट रेडिएशन, देन इन केस ऑफ सर्जरी ऑफ थायराइड, ये सारे कॉजेस है जिसमें हाइपोथायराइडिज्म दिखाई देता है। हाइपोथायराइडिज्म का ट्रीटमेंट क्या होता है? इसमें हार्मोन लेवल्स कम रहते हैं, इसलिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देना पड़ता है। मोस्टली लीवोथायरोक्सिन इज गिवन, इट इज अ हार्मोन रिप्लेसमेंट ड्रग। पेशेंट का थायराइड हार्मोन लेवल 6 वीक्स टू 6 मंथ्स के इंटरवल में चेक होना चाहिए। लीवोथायरोक्सिन का डोज पेशेंट के थायराइड हार्मोन लेवल मॉनिटरिंग के ऊपर डिपेंड है। वो थायराइड हार्मोन लेवल चेक करने के बाद लीवोथायरोक्सिन का डोज एडजस्ट करते हैं। पेशेंट के हार्मोन लेवल जब तक कम है तब तक पेशेंट को गोली लेना ज़रूरी है। अगर गोली बीच में छोड़ दी, अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दी और गोली लेना बंद किया तो उसका एडवर्स इफेक्ट कार्डियक सिस्टम पे हो सकता है। इन प्रेग्नेंट वुमन लीवोथायरोक्सिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। प्रेगनेंसी में थायराइड का अर्ली डिटेक्शन नहीं हुआ तो फीटस में थायराइड हार्मोन लेवल कम होने की वजह से ब्रेन में डिफेक्ट भी हो सकता है and other developmental anomalies also seen in fetus. So pregnancy में thyroid hormone monitoring is very important and drug intake is also very important for fetal brain development and other organ development. Then next condition is hyperthyroidism. There is a too much secretion of thyroid hormone. इसमें T3 T4 हार्मोन लेवल के सिक्रेशन बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाता है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट भी बढ़ता है। इसमें लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं? इसमें हाई मेटाबॉलिक रेट होने की वजह से एपेटाइट अच्छा रहता है, उसके बावजूद भी पेशेंट वेट लूज करता है। इसमें नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस भी दिखाई देता है। इसमें लैक ऑफ स्लीप, हीट इंटॉलरेंस और फ्रीक्वेंट बाउल मोशन, दैट इज डायरिया आल्सो सीन। आल्सो देयर इज ए हेयर लॉस, ब्रिटल हेयर आल्सो सीन। हाइपरथायराइडिज्म के कॉजेस क्या है? फर्स्ट इज ग्रेव्स डिसीज। इट इज अ ऑटोइम्यून डिसीज, डिस्टर्ब्स थायराइड हार्मोन लेवल एंड लीड टू गॉइटर। Another cause is there is a tumor in pituitary gland. Another important cause is excessive iodine intake. What is the treatment of hyperthyroidism? इसमें एंटी-थायराइड ड्रग्स देने पड़ते हैं which suppress the thyroid hormone level. Then sometimes radioactive iodine 131 is also given and sometimes सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज ऑल्सो रिकमेंडेड। तो बहुत सारे पेशेंट का क्वेश्चन रहता है कि एक बार थायराइड की गोली लग गई तो उसे उम्र भर लेनी पड़ती है। एलोपैथिक ड्रग्स के साथ आप होम्योपैथिक ड्रग्स और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस करते हैं तो ये थायराइड ड्रग्स टेपरिंग डोसेस में देकर अगर थायराइड हार्मोन लेवल नॉर्मल होता है तो उसे बंद भी कर सकते हैं। होम्योपैथी में थायराइड लेवल कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे ड्रग्स हैं। These all drugs are given on the basis of individualization. Mostly thyroidinum, iodum, calcarea carb, kali iode, सेपिया, नाइट्रोम्यूल, ये ड्रग्स होम्योपैथी में दिए जाते हैं। These are given on the basis of symptomatic similarity and individualization. होम्योपैथिक ड्रग्स, एलोपैथिक ड्रग्स, इसके साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो पेशेंट में गॉइटर जैसी कंडीशन दिखाई देती है वो पेशेंट में गॉइट्रोजेनिक फूड अवॉइड किए जाते हैं, जैसे पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, मिल्क प्रोडक्ट, सोया प्रोडक्ट्स, ये अवॉइड करते हैं। और दूसरे थायराइड केसेस में एज सच डाइटरी चेंजेस नॉट नीडेड। थायराइड के पेशेंट डेली डाइट में एक सीजनल फ्रूट लेते हैं तो वो अच्छा है उनके लिए। एक स्मॉल पीस ऑफ ड्राई कोकोनट भी लेते हैं तो वो भी अच्छा है उनके लिए। देन कंजम्पशन ऑफ हॉर्स ग्राम दाल, कुलित दाल का सूप, वो भी उनके लिए अच्छा होता है। देन स्ट्रेस रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग टेक्निक आल्सो हेल्प। एक्सरसाइजेस में डिफरेंट योगा पोस्चर
They are also beneficial in controlling thyroid hormone level. Fish pose, shoulder pose, lion pose, these asanas help in controlling thyroid hormone level. So this is all about of thyroid gland. In next video we are going to discuss about PCOD, that is polycystic ovarian disease. If you found the videos informative, please like, share and subscribe. Till then, thanks, bye.